Parag, am I visible? But मेरी आवाज आ Me- Meenal, am I audible? Supriya, am I audible? Yes, you are audible. Am I audible? Yes, you are audible. But then, Now let's begin. yes, we should definitely begin because many people are waiting and we should tell them that sorry, we were almost half an hour late due to some technical issues. But thank you for having the patience and cooperating with us. So, Supriya, yes, definitely you can start. Hey everyone, I'm Supriya Madan, president of Fem Group. We run social clubs in Indore. अभी का जो माहौल है, हर जगह इतनी नेगेटिविटी है, ऑब्बिचुरीज के पेज भरे हुए हैं, हर जगह हम डेथ्स देख रहे हैं और ऐसी डेथ्स जो हमने कभी भी नहीं देखी, इतनी नेगेटिविटी जो हमने कभी भी नहीं देखी। लकड़ियां कम पड़ रही हैं शमशान में, गंगा के घाट पे 2000-2500 शव हम जलते हुए देखते हैं। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था कि जिंदगी मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु
समय की बात है, और हमारे मरने के बाद भी हमें याद किया जाता है, ये हमारे कर्मों की बात है। आज इतनी नेगेटिविटी है सोसाइटी में कि आज हम हर चीज में डर रहे हैं। हमको हमारी जिंदगी, हर जो सांस हम ले रहे हैं, हम भगवान की शुक्रगुजार अपने आप को समझते हैं कि भगवान ने हमें एक और दिन दिया। बट कई बार इतनी डिप्रेसिंग ये चीजें हो जाती हैं कि हमें समझ नहीं आता इस चीज को पॉजिटिवली कैसे लिया जाए। मीनल, क्या डेथ इतनी डिप्रेसिंग है? क्या डेथ इतनी बुरी है जितना हम डरते हैं? Thank you, Supriya, first of all, because we have come with the topic जो today also उसको culturally बहुत बड़ा taboo माना जा रहा है, and even we decided कि हम इस topic पे बात करेंगे, तभी भी हमको feel हो रहा था कि कहीं हम किसी के sentiments को touch ना कर दें. But still we decided we will come with this topic and make it as simple for everyone, जिसको सब कोई समझ पाए. So before I start with the concept of death, मैं सबको समझाना चाहती हूँ कि लाइफ क्या है. What is life? Life is only the manifestation of the energy. Okay, it's only the manifestation of energy, and you all should know that who we are. We are basically the spirit, the energy, the soul, जो इस physical form के अंदर है. लेकिन people are always connected to their ego. So because of ego, we are not able to understand actually who we are. And when we are no more in the physical form on this planet, so we feel, oh God, we are dead. But basically, there is nothing like death. Life and death, they goes on together. You are breathing, you keep your finger here and feel, आप एक बार breathe कर रहे in, so you are alive. And when you leave your breath, then you are dead. When we are also talking to each other, Supriya, I think million and trillions of cells are dying, and then the cells will be formed. So basically, if I talk about the concept of death, that is, it is nothing. It is only the transition of energy. Transition of energy from one form to the another. अगर अब हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करें तो सिंस चाइल्डहुड ये कल्चरल बिलीव है और फंडामेंटली हमें ये बहुत ज़्यादा डर बिठाया गया है कि when someone dies, the person who was in front of us for so many years or so long वो immediately कहीं गायब हो गया या कहीं चला गया. बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है. ट्रस्ट मी. अगर हम बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉडी. योगिक टाइप के हिसाब से 5 टाइप्स की बॉडी होती है, बट आई विल डिस्कस हियर अबाउट द 3 टाइप्स. दैट इज द फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी एंड सोल बॉडी, और यू कॉल इट द एनर्जी बॉडी. सो व्हेन वी डाई, दिस फिजिकल फॉर्म इज गेटिंग ओवर. दिस फिजिकल फॉर्म खत्म होता है. योर एनर्जी बॉडी इज स्टिल देयर. आपका जो माइंड है वो हर लाइफ एंड डेथ की साइकिल में आपके जितने भी जन्म हुए हैं आप उसको कैरी करते हैं. That is what it is called the karmic memories. So you never feel that somebody has died तो वो इंसान गायब हो गया. Energy wise वो अभी भी यही है. Maybe in the other dimension. जैसे आप रेडियो सुनते हैं सुप्रिया, so 98.3 FM पे अलग फ्रीक्वेंसी आती है, 92.7 पे अलग फ्रीक्वेंसी आती है. तो similarly we are the vibrational beings. We are the energy beings. So हम भी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट करते हैं. So when we die, we just leave this dimension and we go to the other dimension. It is as similar कि आप इस रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं, या इंडिया से आप अमेरिका जा रहे हैं, या यूरोप जा रहे हैं, या कहीं और जा रहे हैं. Okay, it is very simple. You don't have to. Yes, Supriya. ये जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बताए, ठीक है, जो हमारे साथ थे अब हमारे बीच में नहीं है, बट वो अमर है. मतलब आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है. बट मीनल, जो लोग अपने लव्ड वंस को खो देते हैं, अभी ये जो पैंडेमिक चल रहा है इसमें कई बच्चे अनाथ हो गए हैं. आप देखिए आसाम में, मुझे कल मालूम पड़ा कि एक ऐसा आर्टिकल था कि आसाम के न्यूज़पेपर्स में बच्चों की फोटोग्राफ्स आ रही हैं कि ये बच्चे हैं, इनकी ये एज है, जो इनको अडॉप्ट करना चाहे. तो ये इसमें क्या पॉजिटिविटी ढूंढे जो बच्चे अनाथ हो गए? देखिए, सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन उठाया है ना, we suffer the pain या agony because we are attached to the physical form. If we are not attached to the physical form, तो आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि आपके loved ones कहीं गए हैं. इसके लिए मैं आपको महाभारत का एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहूंगी. युधिष्ठिर से एक सेवक ने पूछा था कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक चीज क्या है.
राइट? तो उसको युधिष्ठिर ने आंसर दिया कि वर्ल्ड में या इस धरती पर सबसे आश्चर्यजनक चीज ये है कि वी ऑल डाई एंड एवरीबडी इज डाइंग इन फ्रंट ऑफ अस, फिर भी हम कहीं ना कहीं इस इंप्रेशन में रहते कि हम इमॉर्टल है। तो सुप्रिया, जितने भी लोग हैं इस प्लैनेट पे और इस यूनिवर्स में जितनी भी लिविंग थिंग्स है, इट इज मैंडेटरी कि अगर हम फिजिकल फॉर्म में हैं तो वो खत्म होना ही है। You cannot think कि you will survive infinite years or in this physical form. The soul is immortal. सोल इधर से उधर जा रही है। हम क्यों इतने दुखी हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं? क्योंकि हम जो भी हमारे लव्ड वन गए उनसे बहुत ज्यादा फिजिकली कनेक्टेड थे। जब हम उनसे बहुत ज्यादा फिजिकली कनेक्टेड होते हैं तो हमें लगता है ओ शिट, हमने उनको खो दिया। बट जब कोई कहीं जा रहा है ये डायमेंशन छोड़ के, तो प्लीज उनको पॉजिटिविटी दीजिए कि इवन इफ यू आर गोइंग, वी आर फाइन हियर, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स आवर ओन जर्नी। ये सोसाइटल नॉर्म्स है जिसने हमको बहुत ज्यादा ईगो और रिलेशनशिप्स में जकड़ दिया है। अगर हम सबको इतना प्यार है तो व्हेन समवन गोज, व्हाई डोंट वी लीव? हम भी उनके साथ क्यों नहीं छोड़ देते इस प्लैनेट को? डू वी, सुप्रिया? नो, द लाइफ हैज टू गो ऑन, द लाइफ ऑलवेज गोज ऑन। सो इट्स बेटर कि अगर कोई गया है तो उसको पॉजिटिव नोट पे छोड़िए। और जो ये बात है कि कोई बच्चे रह गए या कुछ, तो देयर आर सर्टेन अमाउंट ऑफ कर्मास व्हिच वी हैव टू फेस। और कभी मत सोचना कि जो बच्चे हैं उनके साथ कुछ बुरा होगा। जो बच्चे हैं उनके साथ बहुत अच्छा होगा, बिकॉज इट इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स। You cannot stuck to it. It was simply the transition of energy. It is simple, जैसे क्लाउड है, हम क्लाउड को रेन के फॉर्म में अर्थ पे पाते हैं, वापस एवेपोरेट होके क्लाउड बनता है, फिर वो नीचे आता है, फिर वो ऊपर जाता है। इट्स अ साइकिल। सो टिल नाउ आल्सो सुप्रिया, हम भी बहुत सारे जन्म लेके यहाँ तक पहुंचे हैं। सो ऑलरेडी वी हैव टेस्टेड डेथ, so there is nothing to feel scared or something. It's a very good example I will give you. अगर हमारे कोई loved ones अमेरिका जा रहे हैं या यूरोप जा रहे हैं और हम एयरपोर्ट पे सिर्फ रो ही रहे हैं कि आप मत जाइए, आप चले गए तो हम आपके बगैर कैसे रहेंगे। यू नो, यू हैव टू मेक दैट सोल अंडरस्टैंड। अगर वो सोल भी बहुत ज्यादा ईगो से कनेक्टेड है तो दैट सोल विल ऑल्सो टेक टाइम टू लीव दिस वर्ल्ड, बट वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट दे हैव टू गो, वी ऑल आर फाइन, वी ऑल विल सर्वाइव। और उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजिए। इट इज सिंपली, अगर आप उनसे इतना प्यार करते हैं तो उनकी लव लिगेसी को कंटिन्यू करिए, राइट? एंड अगर ऐसा है कि अभी पेंडेमिक में सब जगह इतनी नेगेटिविटी है, तो प्लीज सुबह उठ के पेपर्स को मत देखिए, ये न्यूज मत सुनिए। आई नो दे आर शेयरिंग द फैक्ट्स विथ यू, लेकिन जैसे हम फिजिकल बॉडी के लिए हेल्दी डाइट खाते हैं, वैसे मेंटल बॉडी के लिए जो हेल्दी इंफॉर्मेशन है वो लीजिए। अगर अर्ली मॉर्निंग ही आप ये सब इंफॉर्मेशन लेंगे तो डेफिनेटली यू विल फेस दैट नेगेटिविटी, दैट ग्रीफ, दैट एगोनी। एंड जितने भी लोगों के रिलेटिव्स गए हैं, लव्ड वंस गए, वी डू हैव दैट एम्पैथी एंड सिंपैथी फॉर देम, बट डेफिनेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ लॉ। और इस टाइम तो सुप्रिया, यू नो कि यूनिवर्स ने ही सबसे ज्यादा हमको दिखा दिया है कि वी आर हियर ओनली फॉर आर कार्मिक वर्क। अगर जैसे एक जिस स्पीड में डेथ्स हो रही है, द अर्थ इज एंड द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू शो अस कि हम उनसे बढ़कर नहीं है। इट इज ओनली द गेम ऑफ एनर्जी। Human beings were like proving themselves that they are master of earth, but the nature has shown them that we are just guests on earth, we are not masters, we are not living on earth, we are just passing through it, and we have to accept this fact with grace. मीनल, एक मेरा बहुत ये चीज मुझे पूछनी थी, और ये बहुत ज्यादा दिमाग में सबके आता है जब किसी की भी डेथ होती है। ये चीज बहुत सुनने में आती है कि उनकी उम्र ही क्या थी। पहली बात तो कि किसी की क्या परफेक्ट उम्र होती है कि उसे डेथ हो, मतलब वो चला जाए इस दुनिया से, उसकी एक क्या पर्टिकुलर एज है जो उसको एक बहुत मतलब अच्छी एज माना जाता है कि हाँ यार इस एज में आके तो ठीक है, डेथ हो गई तो ठीक है। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, क्या अकाल मृत्यु होती है? कि देखिए जैसे कि आपकी बॉडी बढ़ती उम्र में और उसके बाद आपकी डेथ होती है, एक उम्र लेकर जब आप जाते हैं, तब ऐसा मानते हैं कि जिनकी उम्र लेके मतलब 90 100 तक जिन लोगों ने जी अपनी जिंदगी और उसके बाद उनकी डेथ हुई, तो उसको वो बहुत अच्छा मानते हैं कि नहीं उन्होंने अपनी लाइफ जी। और आजकल ये पेंडेमिक की वजह से बहुत यंग, मतलब 25 24, कुछ मैंने 8 या 9 साल के बच्चों को भी जाते हुए देखा है। तो ये क्या है? अकाल मृत्यु है? अकाल मृत्यु होती है? अगर नहीं होती है तो क्या परफेक्ट एज है जाने की? देखो सुप्रिया, अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ स्पैन को देखें तो इट इज 0 to 80 years।
बट राइट नाउ सिंस मेनी इयर्स हम ये थियोरी को भी गलत ही प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि द यंग वंस कैन लीव एनी टाइम, कभी ओल्ड, कभी मिड एज्ड, कभी टू एडोलेंस, कभी टू टॉडलर्स, कोई भी जा रहा है. सो अभी तो ये पूरी थ्योरी या ये जो ह्यूमन लाइफ स्पैन का कॉन्सेप्ट है वही हट गया है. फिलहाल फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कभी भी किसी की डेथ हो रही है. So it is somehow that they had this much time only, you know. मैं अभी टाइम के कॉन्सेप्ट पे बात करने से पहले ये बात करूंगी कि सबको, जो भी मुझे सुन रहे हैं या आगे सुनेंगे, उनको ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि वी आर प्रोवाइडेड विद अ लिमिटेड टाइम ऑफ एनर्जी एंड टाइम, और हमको वो कितनी फ्रूटफुली या कितने प्रोडक्टिवली हम यूज कर रहे हैं, दैट इज अवर लाइफ. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मैं एग्जाम्पल दूंगी मनी का, तो यू ऑल नो कि हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है, हम उसको कितना सेव करके चलते हैं, उसको कितना प्रीशियसली संभाल के चलते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू टाइम, व्हेन इट कम्स टू लाइफ, तो हम बिल्कुल भी बॉदर्ड नहीं होते. फुल डे में 80% टू 90% इंस्टाग्राम, एफबी, व्हाट्सएप, कुकिंग, क्लीनिंग, इसी में निकाल देते हैं. So do you think that we are doing this whole lifespan in a constructive way? No, not at all. अगर आपको आपका टाइम सेव करना है या यूज करना है, प्लीज उसको बहुत प्रोडक्टिवली कीजिए. तो इफ somebody has being provided with the 34 years of time, वो 34 years के बाद ही जाएंगे. yes, कुछ जो सडन डेथ्स रहती है, जैसे मर्डर्स हैं, सुसाइड है, एक्सीडेंट्स हैं, after that that soul really takes time to leave this dimension. It really takes. I hope the audience is understanding कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ. because when the physical body is no more, because ये body एक व्हीकल है, ये व्हीकल है जिससे हम अपनी सोल उसको ले जा रही है. जब फिजिकल बॉडी एंड हो जाती है सुप्रिया, अगर सडन डेथ के हिसाब से, तो सोल को थोड़ा टाइम लगता है. क्योंकि हम ईगो से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, राइट. हमें लगता है कि हम यही फिजिकल बॉडी है, इसलिए सबको बोला जाता है थोड़ा स्पिरिचुअल हुई है. when you understand that what is spiritualism, when you understand what is your soul, what is energy, so when you die, you immediately leave this dimension and go to the other dimension. अगर आप नहीं करते, आप बहुत ज्यादा अपने सोल से, अपनी बॉडी से कनेक्टेड है, then it is really difficult for you also to leave and go. So see, death is inevitable, no matter whatever age you are. If the amount of years has been given to you, आपको उतने years cross करके ही जाने हैं. बट आपके हाथ में क्या है कि आप उस टाइम को एफिशिएंटली यूज करें. अगर कोई ये सोच रहा है कि हम इस प्लैनेट में सबसे बड़ा मिथ यही है या मिसकंसेप्शन है कि हम यहाँ पे बहुत ईयर्स के लिए है, इसलिए हम रिलैक्स्ड होके जोन में बैठे हैं और वक्त काट रहे हैं. ऐसा नहीं है. जहां हमारे लव्ड वंस गए, एक दिन हमको भी वहां जाना है. So the choice is yours, that whatever time has been provided to you, please उसको बहुत wisely use कीजिए. Okay? जो आप लोगों ने वेव देखी होगी, लहर देख लीजिए, या आप wave of sound देख लीजिए. When there is crust, it's a life, and when there is trough, it's the death. तो जब वो complete one round खत्म करता है, that is one cycle, and that is how we call life and death together. It is just we are changing this season. इस रूम से आप दूसरे रूम में जाते हो, बाकी उससे प्लीज डरिए मत. आप जब इस लेवल पे कॉन्शियसली सोचने लगेंगे, तो आपको कभी भी agony feel नहीं होगा, grief feel नहीं होगा. And you should always see, it's an energy, Supriya. When I'm talking to you or to others, they are feeling those vibes. So जब आपके loved ones जाते हैं, उनको प्लीज वो वाइब्स दीजिए, उनको बोलिए कि आप जाइए, खुश रहिए, आप अपनी नेक्स्ट जर्नी, नेक्स्ट रिलेशनशिप्स को एंजॉय करिए. बिकॉज लाइफ एंड डेथ आर कंप्लीटली इल्यूजन. ओके, सो ऑन दिस प्लेन, शरीर बंधा होता है, आत्मा अमर रहती है. ये वाली बात आपने बहुत अच्छी समझाई. और एक और चीज ये थी कि हमें ये तो मालूम रहता है कि हमारे पास कितना पैसा है, पर किसी को ये नहीं मालूम रहता कि हमारे पास कितना टाइम है. और हम जिंदगी भर इस मिथ में जीते हैं कि अरे हमारे पास पैसा होना चाहिए, हमारे पास टाइम तो बहुत है. पर नहीं, हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है. हमें हर दिन भगवान का शुक्रगुजार रहना चाहिए कि हमें एक और दिन मिला है. इस लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, इस लाइफ को फ्रूटफुल बनाना चाहिए. और एक और चीज समझ के चलनी चाहिए कि डेथ सफरिंग नहीं है. डेथ is the beginning of new life. मोक्ष का रास्ता है. या बट मोक्ष या निर्वाणा या ये भी इतना आसानी से नहीं मिलता. बट आप सब इतना जरूर समझ सकते हैं कि डेथ इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ. So you should be not scared. Why we are scared? Why we feel so much fear? Because हम सिर्फ इस बॉडी से कनेक्टेड है. इसलिए जरा सुबह उठिए,
ध्यान लगाइए, अपनी सोल से कनेक्ट हुई है, बिकॉज इट इज इटर्नल। जो आप इतने सालों से उसका एक्सपीरियंस लेके आए हैं, इस जन्म में भी और एक्सपीरियंस लीजिए एंड जाइए, एंड डोंट ट्राई टू रेजिस्ट इट, एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली। ओके, इफ यू विल रेजिस्ट इट, आप हमेशा तकलीफ में रहेंगे। अगर इसका मैंने, सुप्रिया, if you रिमेंबर, कल इंस्टाग्राम पे जब हम लाइव थे तभी भी बताया था ऑफ अ स्नेक। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल सदगुरु जी ने दिया है कि द एनिमल लाइक स्नेक, जब उसको पता चल जाता है कि उसकी डेथ आने वाली है, तो वो एक ट्री के ऊपर जाके चुपचाप बैठ जाता है। ही अवॉइड्स एनीथिंग टू ईट, एंड विद स्लोली एंड ग्रेजुअली वो अपनी बॉडी को छोड़ देता है। सो एनिमल लाइक स्नेक जो इतने कॉन्शियसली अपनी डेथ को ले सकता है, तो व्हाई नॉट वी एज अ ह्यूमन बीइंग्स? ऑलरेडी वी आर वेरी लकी कि हमें ह्यूमन बर्थ मिला है, तो बी हैप्पी। आई नो दैट हम जिससे प्यार करते थे, अगर आप उनसे सच में प्यार करते हैं, सो एक्सेप्ट दैट, उनको वेल विशेस कीजिए, जैसे हम दूसरी जर्नी के लिए बाय करते हैं, टेक ऑफ प्लेन लेने से पहले स्माइल देते हैं। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट whenever such situations comes, you need to be strong. ठीक है, हंसिए मत, बट काम रहिए, स्ट्रांग रहिए, और अपने अंदर से ही उनको बोलिए कि यू प्लीज गो अहेड फॉर योर जर्नी, फॉर योर बेटरमेंट, बिकॉज दिस इज द ट्रूथ। अगर आप रोएंगे, आप परेशान रहेंगे, तो उस सोल का सोचिए कि उसको कितना डिफिकल्ट होगा यहाँ से जाना, उसको कितना, बिकॉज एनर्जीज आर डेफिनेटली, कई बार सुप्रिया जैसे हम अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड रहते हैं, वो लोग कुछ नहीं भी बोलते तो हम कनेक्ट हो जाते हैं। इट इज द सेम वे, the soul listen, yeah, speaking, they cannot speak or they cannot listen, but they can feel that my loved ones are crying, they are showing that restlessness, तो उसको वो मत फील करवाइए, ओके, अदरवाइज वो लॉस्ट हो जाते हैं। कल मीनल जब हम इंस्टाग्राम पे लाइव थे, तब आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आपका जो भी प्यार है आपके लव्ड वंस के लिए जो चले गए हैं, उसको जिंदा रखिए, उस प्यार को जिंदा रखिए और उसको अच्छे फॉर्म में यूज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल एनजीओ स्टार्ट कीजिए, मैनकाइंड को सर्व कीजिए उनके नाम पे, ताकि उन्हें भी मीन्स ये लगे कि कंटिन्यू देयर वो लव जिंदा है। लेगेसी, कंटिन्यू देयर लव लेगेसी। इसका मैंने एग्जाम्पल दिया था रिसेंटली, मैंने एक वीडियो देखा था, अमेरिका में एक नेवी में हस्बैंड वाइफ थे, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, एंड बीइंग अ वेरी स्ट्रांग लेडी, शी स्टार्टेड a very big group of all the widows, whether male or female, और उसने सबको इकट्ठा किया, and then she starts very they do party, they go to visit the different countries in the world, they talk, they have created a community जहाँ वो एक दूसरे से हर कुछ अच्छा शेयर करते हैं। तो this is how उसने जो अपना प्यार था अपने हस्बैंड के लिए, उसको कंटिन्यू कर। That's what I always say, Supriya, we have two choice. जो गए हैं उनके प्यार को आगे बढ़ाइए और क्रिएटर बनिए अपनी लाइफ के, या तो जो गए हैं उस दुख को लेके बैठिए और विक्टिम बनिए आपकी लाइफ के। तो the choice is yours. The audience, the choice is completely yours. जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ। मीनल, इज डेथ पेनफुल? Is death painful? That's what I said, Supriya. It's never painful. The pain is only for the physical body. आप सोल को कभी कोई पेन नहीं दे सकते। यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज इटर्नल। लेकिन आप जितने अपने ईगो से कनेक्टेड रहेंगे, हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग, व्हेन द लास्ट मोमेंट, व्हेन यू आर टेकिंग द लास्ट ब्रेथ, आपके दिमाग में अगर फियर है, तो थोड़े टाइम तक आपका कॉन्शियसनेस फियर टॉलरेट करेगा। अगर आपके लास्ट थॉट में एगनी है, तो वो थोड़ी देर तक आपकी कॉन्शियसनेस, देखिए मैं कॉन्शियसनेस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ। जब आप बहुत डीप स्लीप में होते हैं, तो आप जो भी देखते हैं अपने सपने में, आपको वो सब रियल दिखता है ना। आप वहां कुछ बोल नहीं सकते, वहां कुछ कर नहीं सकते, बट यू नो दैट द पिक्चर इज कंप्लीटली न्यू एंड समथिंग इज गोइंग ऑन देयर। ऐसा ही होता है व्हेन वी डाई। We can feel everything, but we don't have anything to express. हमारे पास physical form नहीं रहता अपने thoughts को express करने का when we die. So one thing I just want to say, when you see that your loved one is going somewhere, or if it is the last time, प्लीज उनसे बहुत अच्छे से, अगर वो इस सिचुएशन में नहीं है कि बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अच्छे उनसे बात कीजिए, आप ही बात कीजिए, उनको अच्छी वाइब्स दीजिए, अपनी थॉट प्रोसेस अच्छी रखिए ताकि उनको तकलीफ नहीं। उनको अब ये रियलाइज हो जाना चाहिए कि दे हैव टू लीव देयर ईगो। ओके, ईगो पे भी एक सेशन लेना जरूरी है, सुप्रिया, बिकॉज पीपल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ईगो। पीपल फील ही this body is only who we are, but there is something real which is inside this body, which you cannot feel, which you cannot see, but you can only feel. That is what is soul, and it is eternal. So life was always impermanent. Okay, life and death is not something,
जितना आप लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं उतना ही डेथ को भी सेलिब्रेट करिए. ओके हम दुखी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वी आर फिजिकली. तो नथिंग इज पेनफुल, इट डिपेंड्स हाउ यू आर टेकिंग थिंग्स. इट इज दैट वे. अगर वो सच में पर्सन बहुत पेन में है तो उसको रिलैक्स कीजिए, बात करते हैं, उसको समझाइए कि यू आर नॉट डाइंग, यू आर जस्ट चेंजिंग द रूम, यू आर जस्ट चेंजिंग द क्लोथ, यू आर जस्ट गोइंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री. इट इज लाइक दैट. तो उनके लिए भी बहुत ईजी होगी जर्नी. आई अंडरस्टैंड कि ये अटैचमेंट है जो पेन करता है, और ये भी है कि आत्मा अमर रहती है, हमारे लव्ड वंस जो चले गए हैं वो रहेंगे बट दूसरे फॉर्म में रहेंगे एनर्जी में, और एक दिन हमें भी जाना है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए. बट एक बहुत बड़ी चीज है अभी के सिनेरियो में, अभी मैं जब अपना सेशन चल रहा है घर के बाहर से कुछ 3 से 4 एम्बुलेंसेस की आवाजें निकल के गई. हम इस चीज को आंखें बंद नहीं कर सकते जो बाहर सिचुएशन चल रही, क्योंकि ऑलमोस्ट कंट्री में हर किसी ने अपने किसी ना किसी को खोया है. इस चीज में क्या पॉजिटिविटी है अभी ऐसे सिनेरियो में, कैसे पॉजिटिव रहें? So Supriya, in the end only, in the beginning only I told you कि बाहर तो बहुत सारी नेगेटिविटी है 100%. आई गिव यू वंडरफुल एग्जाम्पल ऑल्सो कि आप अपने माइंड को क्या फीड करें. देखिए डेथ तो होनी ही है. अब सिचुएशन अभी फिलहाल ऐसी आई है. एंड वन थिंग, क्या न्यूज़पेपर कभी ऐसा लिख के देते हैं कि 50 लाख पीपल्स आर अलाइव? दे विल डेफिनेटली राइट दैट 10,000 पीपल डाइड. वो आपको कभी भी पॉजिटिविटी नहीं भरेंगे. अभी भी बहुत सारे लोग सरवाइव कर रहे हैं. द डेथ रेट इज ऑलरेडी लो. बट अगर हम सिर्फ डेथ रेट को ही देखेंगे, अब अगर हमको ही वो नेगेटिव चीज अपने अंदर लेनी है तो आउटपुट विल बी ऑलवेज नेगेटिव. जो जिनके लव्ड वंस गए हैं, आई अंडरस्टैंड दैट इट इज रियली पेनफुल, लेकिन प्लीज ज्यादा टाइम तक उस पेन में मत रहिए. प्लीज डू कम आउटसाइड. ऐसे तो अगर किसी के 99 ईयर्स 100 ईयर्स के भी लव्ड वंस जा रहे, दे विल फील बैड. But one thing, what you're feeding, what information you're giving to your mind is the output which you will see. So Supriya, देखो प्लस एंड माइनस तो हर जगह है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो एवरी जगह. अब तुम बोल रहे इस सिचुएशन में क्या पॉजिटिव ले, तो इस सिचुएशन में ये पॉजिटिव देख लो कि अभी भी बहुत सारे लोग जी रहे हैं. ऐसा नहीं है कि सब लोग खत्म हो गए. There are still and again you and me. कही है आपने एक चीज कही है कि यू हैव टू एक्सेप्ट डेथ बीइंग अलाइव, कि हम जब जिंदा Yes. है हमें जिंदा रहते हुए मौत का एहसास रखना चाहिए कि हाँ हमें भी एक दिन आएगी. इसके लिए क्या किया जाए? मतलब कुछ जैसे कि हमें पतला होना है तो उसके लिए एक्सरसाइज होती है, इस चीज के लिए क्या एक्सरसाइज है, क्या सोचें ऐसा कि हमें ये रियलाइज हो कि हाँ नहीं मौत. देखिए इसके लिए तो जब जिस दिन हम पैदा हुए थे ना, उसी दिन से हम अपनी डेथ की तरफ ही जा रहे हैं. अब अगर हम ये एक्सेप्ट कर ले तो बेस्ट है. एंड सबसे इम्पोर्टेंट, प्लीज स्टार्ट मूविंग टू द स्पिरिचुअल पार्ट. स्पिरिचुअल पार्ट डजंट मीन वेयरिंग ऑरेंज क्लॉथ एंड गोइंग समवेयर. Spiritual path means just understanding your emotions, your mind, your feeling. सुबह उठ के मेडिटेशन वर्ड इंग्लिश का वर्ड है, आप हिंदी में अगर वो वर्ड को समझेंगे तो बहुत फैंटास्टिक वर्ड है. प्लीज ध्यान लगाइए. आप जैसे ध्यान लगाएंगे आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास यहाँ पे खोने को कुछ है ही नहीं. मैं यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए सब कुछ एक्सप्लोर करने आई हूँ, सब एक्सपीरियंस करने आई हूँ, एंड देन आई विल गो फ्रॉम हियर. सो व्हेन दिस माइंडसेट आपका बन जाएगा तो फिर आपको कभी किसी चीज का डर नहीं लगेगा. And trust me, it is not an easy process, but it is not difficult also. क्योंकि हम 2 सेकंड्स के लिए भी किसी चीज के लिए फोकस नहीं रहते. हमारा माइंडसेट, एक पिंग बचता है तो व्हाट्सएप देखते, एक पिंग बचता है तो इंस्टा देखते, एक पिंग बचता है तो मैसेंजर देखते, कुकिंग कर रहे हैं उधर ध्यान है. तो 24 आवर्स वी आर नॉट फोकस्ड ओनली. तो जब हम फोकस्ड ही नहीं है, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं खोए हुए हैं ना. तो खोए हुए हैं तो फियर ही फियर रहता है. जब हम अपने आप में कंटेंट हो जाएंगे, जब पता चल जाएगा कि this dress, when this dress becomes old or this dress becomes shabby or dirty, I have to leave this dress and I will get a wonderful new dress. That's it. Then you will never have a fear. So please get up early in the morning and ध्यान लगाइए, क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स के सामने we are like a speck. तो प्लीज अपने आप को बहुत बड़ा मत महसूस कीजिए. थैंक यू सो मच मीनल, आज आपने बहुत कुछ सिखाया. सबसे पहले ये कि भाई डेथ इज इनएविटेबल. आप जब से पैदा हुए तब से हम कंटिन्यूअसली हमारी डेथ की तरफ जा रहे हैं. हमें ये मालूम रहता है कि हमारे पास कितने पैसे हैं, पर हमें ये नहीं मालूम हमारे पास कितना टाइम है. टाइम की वैल्यू कीजिए. आपके लव्ड वंस जो आज आपके साथ हैं उनकी वैल्यू कीजिए. उन्हें बताइए कि आप कितना प्यार करते हैं, क्योंकि एक बार एक बहुत ही सुंदर गाना था किशोर कुमार जी का
कि जिंदगी के सफर में सफर गुजर में जाते गुजर हैं जो मकाम को फिर कभी नहीं आते। तो उसे एक बार सुनिए और आपको आपकी जिंदगी रियलाइज होगी कि ये कितनी खूबसूरत है। अर्थ ने हमें ये दिखाया कि हम जो उसको अपने हम मास्टर्स समझते थे अपने आप को अर्थ के, बट ये पेंडेमिक ने ये बताया कि नहीं, वी आर जस्ट गेस्ट ऑफ अर्थ। अर्थ जो नेचर है, जो मदर नेचर है, वो सब कुछ है। वी आर जस्ट पासिंग थ्रू अर्थ, वी आर नॉट लिविंग ऑन इट। सो इट्स या लाइक कि अपनी जिंदगी की वैल्यू कीजिए, मौत को एक्सेप्ट कीजिए। जो ये मौत है, ये एक एंड है सफरिंग का, ये मोक्ष है, या इसे गलत तरीके and से मत beginning of a लीजिए। new life, beginning of a new life. And it बिगनिंग is ऑफ simply न्यू the लाइफ। transition of energy according to law of thermodynamics from one form to another. Nothing else. No words. मतलब I was so negative about all the things going around, but after this session, Meenal, I don't know about anybody else, but you have transformed me, and thank you so much for all those words because they were really motivating. Thank you, Supriya, and I hope that we have not tried to touch anyone's sentiments. Please, whatever time has given to you, so बहुत wisely use. एग्जैक्टली बाद में रोने से अच्छा है कि आज आपके लव्ड वंस को बताइए कि हाउ मच दे वैल्यू, मतलब आपको उनकी कितनी वैल्यू है, आप उनसे कितना प्यार करते हैं। आज आपकी जिंदगी की वैल्यू कीजिए, बाद में मौत तो सभी को आनी है, तो जो आपके पास है उसकी अभी वैल्यू कीजिए। यही आज के सेशन का मेन कंक्लूजन है। सो वील टेक अ गुड बाय एंड थैंक्स फॉर नाउ। बाय एवरीवन। Bye bye, everyone. Thank you.